everyone. Today we are having Ms. Sunili Sachdeva, AIR1 CLET PG 2025, to share her experiences. Hi Sunili, welcome and thank you so much for taking out the time for this conversation. Hi Vidushi, thank you so much for calling me. Okay, and I am Vidushi. I am conducting this interview on behalf of Team NJL. We are really excited to talk to you today about your journey to securing AIR1 in CLET PG, which is a phenomenal achievement. The aim of this interaction is to document your experiences, like how you prepared, what challenges you faced, and your advice for those who will be appearing in the upcoming exam cycles. Okay, so let's start with the background. Please tell us a little about yourself. सबसे पहले कि आप कहाँ से हैं, किस कॉलेज से आपने लॉ किया है, and why you choose law. Hmm. Okay, so basically I am from Saharanpur, Uttar Pradesh. मैंने law इसलिए choose करा because there is no particular reason or some very motivating story for it. I just went to a career counselor when I was in class 11th with my dad, and he was my dad's friend. So at that time, he just asked me to take law as a career option, like I can actually if there is any scope in it. So I started preparing for CLAT UG under his guidance. So when I started preparing for CLAT UG, I got interested in contract law, torts law. So that's how I developed my interest. Then I chose Jamia over. I was getting NLU Patiala that time in my CLAT UG, but then I chose Jamia because of the location. It was in Delhi, and I found it to be more giving more exposure to my career pursuits, and that's how I chose Jamia over NLU Lucknow. There, I completed my 5 years BA LLB honors, and I graduated from Jamia in 2022. उसके बाद से ही मैंने थर्ड ईयर में ही अपना मन बना लिया था कि मेरे को जुडिशरी की प्रिपरेशन ही करनी है. आई वांटेड माय करियर टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी इन माय फिफ्थ ईयर इटसेल्फ. सो जब मैं ग्रेजुएट हुई तो मेरा फोकस यही था कि मैं सिर्फ जुडिशरी के एग्जाम्स दूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू थिंक एनीवेयर एल्स. मुझे दो नाव में अपने पैर नहीं लगाने हैं. तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग जुडिशरी से ही करी. बट देन ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द कंपटीशन, वो प्रेशर झेला. उसमें वो मुझे 1-2 साल लगे सिलेबस समझने में. मैंने बहुत सारे स्टेट्स के मेंस लिखे, 1-2 स्टेट्स के इंटरव्यू फेस करे. तो मुझे रियलाइज हुआ कि जुडिशरी के एग्जाम्स में बहुत अनसर्टेनिटी है. विद योर हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी, कि जो चीज आपको मिलनी है वो किस टाइम पे मिलनी है, दैट्स ऑलरेडी डिसाइडेड. तो मुझे लगा कि आई नीड समथिंग मोर स्टेबल इन माई लाइफ, एंड दैट्स हाउ आई रोट क्लैट पीजी दिस टाइम. And I was earlier my rank was second, but then with the revised results, I was fortunate enough to secure All India Rank 1. So this is the brief background that I would like to give. And one more thing, I had appeared for CLAT PG last year also, and there I secured All India Rank 50. But then I did not pursue LLM at that time because I had my judiciary means of Haryana and Rajasthan, and that's when I vacated the seat. So this was the second time that I appeared for CLAT PG. Okay, so maybe so how did you balance your preparation of CLET PG and judiciary? Like pattern is different for both of them. Hmm. So मैंने CLAT PG का फॉर्म फिल करा ऑन 16th of October. उससे पहले तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं क्लैट पीजी के लिए अपियर करूंगी इस साल, बिकॉज आई गेव माई हरियाणा जुडिशरी का इंटरव्यू इन September. So I was expecting the result, but then the result did not turn out to be in my favor. And that's when this thing struck in my mind that no, I need to have a plan B. This is not how it's gonna work. So then I filled the form in mid October, and then I started preparing for it in those 1.5 months that I had. तो उसमें of course the preparation strategy of judiciary exam and CLAT PG is different.
बट व्हाट इज सेम इज कि जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके कोर लॉज हैं, वो तो सेम ही रहेंगे। आप चाहे क्रिमिनल लॉ देख लो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लॉ देख लो, फैमिली लॉ देख लो, इट ऑल रिमेन सेम। सो मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करा। मैंने प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करे। आई जस्ट सॉ द पैटर्न वंस अगेन। आई वॉज ऑलरेडी फैमिलियर विद इट क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी अपीयर करा था। बट मैंने फिर भी एक बारी प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करके ये देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट्स मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, जैसे फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, वट एवर इज आस्क्ड इन जुडिशरी, वो मुझे ऑलरेडी पता था, तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा। बट द सब्जेक्ट्स दैट आई नेवर स्टडीड ड्यूरिंग माई जुडिशरी प्रिपरेशन, दोज वर लाइक टैक्सेशन लॉ, लेबर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, ये सब मैंने नहीं पढ़े थे। तो इसमें अब मेरे पास ये टाइम नहीं था कि मैं पूरा पूरा बैराक रीड करूं। वैसे यही सिखाया जाता है दैट हमें बैराक रीड करना चाहिए कवर टू कवर। बट देन आई फील कि इन सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप एक थोड़ी सी सुपरफ्लुअस अंडरस्टैंडिंग भी रख लोगे ना, एंड आप ये देख लोगे कि प्रीवियस ईयर्स में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, अगर आपसे वो टॉपिक्स भी करके चले जाओ, तो थोड़ा सा काम चल सकता है। बट देन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू वांट टू रीड द एंटायर बैरक, देन नथिंग बेटर देन दैट। बट बिकॉज मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने इन सब्जेक्ट्स के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी रखी। मैंने प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करा। मैंने पूरे पूरे बैरक नहीं पढ़े। अगर आप इन्वायरमेंट लॉ में जाओगे या आप लेबर लॉ देखोगे, देयर आर सो मेनी लेजिस्लेशंस। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया। तो अब मेरे पास वो सब पढ़ने का टाइम नहीं था, तो मैंने उनकी सुपरफ्लुअस अंडरस्टैंडिंग ली। मैंने उसका जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस समझा कि लेबर लॉ का क्या जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है, क्यों है वो, इन्वायरमेंट लॉ क्यों है, इन्वायरमेंट लॉ कैसे कैसे डेवलप हुआ है थ्रू द जुडिशियल एवोल्यूशंस। मैंने बस इतना पढ़ा एंड आई स्ट्रेट अवे वेंट टू टेक द एग्जाम। Okay, so how did you structure your preparation? Like you follow any weekly or monthly plan or daily routine? सी मेरा पढ़ाई का कोई रूटीन या कोई टाइम टेबल नहीं है। कि एक होता है ना, जैसे सम स्टूडेंट्स हैव दे हैव अ फिक्स टाइम शेड्यूल कि सुबह उठ के मेजर लॉ पढ़ना है, शाम में माइनर लॉ पढ़ना है, रात में न्यूज़पेपर पढ़ना है। मेरा ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। आई गेट अप व्हेन आई वांट टू, आई स्लीप व्हेन आई वांट टू, एंड उसके बीच में मैं अपना रूटीन, मतलब ऑफ कोर्स पढ़ना तो पड़ता ही है। ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ो ही नहीं। मतलब इफ यू have to clear a competitive exam, and especially after this year CLAT PG, because I think number of applicants will definitely increase this time considering the 3 years rule. So पढ़ना तो Yes. पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट देन एक जो ये वाली चीज होती है ना कि आप दिन में इतने घंटे पढ़ोगे तो आपकी इतनी रैंक आ जाएगी, आई डोंट थिंक सो दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर मी एटलीस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कम भी पढ़ रहे हो, बट अगर आप क्वालिटी आपकी अच्छी है, अगर आप जो पढ़ रहे हो, आपने फॉर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया 2 घंटे में, और अगर अगले दिन आप 6 घंटे पढ़े बट आपका कुछ प्रोडक्टिव नहीं था, आपका ध्यान इंस्टाग्राम पे था या कोई नई मूवी आ रही है उसमें था, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी। आप जब भी पढ़ रहे हो, आप ये सोच के पढ़ो कि मैं कुछ नया सीखूंगी। एंड लॉ इज लाइक दैट। वेन एवर मैंने सीपीसी या एसआरए, मैंने ये आई डोंट नो कितनी बार कवर टू कवर पढ़ चुकी हूँ, बट एवरी टाइम आई ओपन द बेयर एक्ट आई फाइंड समथिंग न्यू जो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। सो लॉ इज वेरी डीप। आप जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। सो वेन एवर यू रीड, ट्राई कि आप कुछ नया सीखो आज, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक मेड माय कॉन्सेप्ट्स क्लियर। So there is no strategy, no fixed rule, no timetable. It's just that you have to be consistent. Just read every day. Okay, so like physically judgments बहुत important है पढ़ना. So how do you keep yourself updated with judgments or case law? Yes. Now, for judgments, there is a very big myth going around कि judgments अगर नहीं पढ़ोगे तो CLAT PG हो ही नहीं पाएगा. Of course, CLAT PG मुश्किल हो जाएगा, but judgments is not the only thing that you have to focus on. सबसे पहले हमें फोकस करना है हमारे कॉन्सेप्ट्स पे।
अगर हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी है ना, तो अगर हम वो जजमेंट ना भी पढ़े और हम बिना जजमेंट पढ़े सीधा एग्जाम देने चले जाएं, तो विद द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वी विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 75% ऑफ द एग्जाम. जजमेंट्स नो डाउट इट इज नेसेसरी, और कभी कभी क्लैरिटी जी ना बहुत वेग क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कि किसी भी जजमेंट जो बहुत पहले भी डिलीवर हुई हो. ऐसा नहीं है कि अगर आप 2026 का एग्जाम दे रहे हो तो वो 2025 की पूछेंगे. दे कैन आस्क फ्रॉम 2024, 23, 22, मे बी फ्रॉम 2011 ऑल्सो. तो अब वही है कि जजमेंट्स इतनी सारी हैं कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप दुनिया भर की सारी जजमेंट्स पढ़ लो. इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. बट वॉट इज ह्यूमनली पॉसिबल इज कि आप हर सब्जेक्ट में अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो. अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो जब आप जजमेंट रीड करोगे ना, सो बिफोर गोइंग टू द डिसीजन आप फैक्ट्स पढ़ के ही आप खुद बता पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन दिया होगा. व्हाई? बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. सो बट देन नंदरलेस जजमेंट्स पढ़नी तो पड़ती हैं, बिकॉज एग्जाम का पैटर्न यही है कि वो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये डिसीजन में कितने जजेस की बेंच थी, या हु गेव द डिसेंटिंग ओपिनियन. दे आस्क सच क्वेश्चंस आल्सो. सो फॉर दैट माय गो टू सोर्स फॉर द रीसेंट जजमेंट्स वाज लाइव लॉ. मैं जब से मैंने अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू करी है, आई रीड लाइव लॉ वेरी रिलीजियसली. मैं हर रोज पढ़ती हूँ. उसमें कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कभी कभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता. तो आपको लाइव लॉ या बार एंड बेंच हर रोज फॉलो करना चाहिए. नॉट जस्ट कि आपको एक कंपटीशन एग्जाम देना है इसलिए, बट बिकॉज इसलिए कि आप लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हो. और अगर आपको अपडेट रहना है, आपको देखना है कि आपकी लीगल सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, देन आई थिंक लाइव लॉ इज द बेस्ट सोर्स. सो आई फॉलोड लाइव लॉ. एंड फॉर द रीसेंट जजमेंट्स, मैंने जजमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है. एक तो वो जजमेंट्स होती हैं जहां पर कोर्ट्स रिआइटरेट करते हैं द पॉइंट दैट हैज बीन ऑलरेडी लेड डाउन. देर आर मेनी जजमेंट्स लाइक दैट जिसमें कुछ नई बात नहीं हो रही है, कुछ पुरानी चीज को ही पुराने प्रेसिडेंट के बेसिस पे रिआइटरेट कर रहे हैं. सो आप वो वाली जजमेंट्स स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है तो. बट अगर कुछ किसी जजमेंट में, किसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नई चीज इस्टेब्लिश करी है या कोई पुराना लॉ चेंज करा है, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट पीजी. इसके साथ साथ मैंने जजमेंट्स और लीगल न्यूज से अपडेट रहने के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस. सो इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड वाला पोर्शन आता है. तो उस एक्सप्लेन पोर्शन में इट इज डिवाइडेड इन वेरियस हेडिंग्स. कभी उसमें पॉलिटिक्स आता है, कभी लॉ आता है, कभी साइंस आता है. तो जब लॉ वाला पोर्शन आता था, मैं वो बहुत अच्छे से पढ़ती थी, ताकि वो क्या होता था कि इसमें वो जजमेंट्स आती थी जो कुछ कंट्रोवर्शियल सिस्टम चल रहा है, जहां पर अगर कोर्ट ने कुछ डिसाइड दिया और डिसीजन दिया और लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो वो वाली जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं. जैसे अभी इस साल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वाली जजमेंट आई, तो उसकी वजह से न्यूज़पेपर में बहुत सारे एडिटोरियल्स आए. कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फेवर करा, कुछ लोग उसके अगेंस्ट गए. सो हमें उसमें नहीं जाना कि ये सही करा या गलत, हमें जाना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है. दैट शुड बी द पर्पस. आपको वो पता होना चाहिए. सो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी, लाइव लॉ एंड इंडियन एक्सप्रेस. हाउ क्रूशियल वर मॉक टेस्ट इन योर जर्नी? आपने मॉक्स दिए थे और सोर्स क्या था मॉक्स देने में? कहाँ से मिली आपकी? राइट. सो मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने प्रिपरेशन थोड़ी सी लेट शुरू करी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मॉक सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला. मैंने मैंने प्राइमरली अपना बेसिस रखा कि मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करे. मैं 2024 का एग्जाम दे के आई थी, बट मैंने उसके बाद भी 2024 का पेपर दोबारा सॉल्व करा, टू सी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रही हूँ. तो मैंने 2024, 2023, 22 इन सब के प्रीवियस ईयर सॉल्व करे थे. इसके साथ साथ मैंने एक टेलीग्राम पे आई ट्राइड फाइंडिंग फ्री मॉक्स. देयर आर वेरियस चैनल्स दैट डू दैट. तो मैंने वहां से, देयर इज अ चैनल कॉल्ड के एफ लीगल,
मैंने वहाँ से अपना उन्होंने एक मॉक शेयर करा हुआ था उस टाइम पे, एंड नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ केयरफुल लीगल एज वेल। तो मैंने उस टाइम पे देयर इज अ गाय कॉल्ड उज्जवल, सो ही उन्होंने एक मॉक शेयर करा था, सो आई सॉल्व दैट एंड आई रियली फाउंड द कंटेंट टू बी वेरी नाइस। इट वाज ऑल अबाउट द recent decisions of that year, so I appreciated him as well because that content is very nice. It was not something कि बहुत ज़्यादा कोई stale content हो या पुराना हो, बहुत recent था। so मैंने बस वही mock solve करा था। बट देन ये सबके लिए डिफरेंट होता है क्योंकि मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के प्री ऑलरेडी दिए थे, तो मुझे थोड़ा सा ना आइडिया था कि ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। मैंने क्योंकि मैं ऑलरेडी ओएमआर शीट इन सब चीज़ों से फेमिलियर थी, तो मेरे लिए ये आसान था। इट वाज नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, बट देन फॉर एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, स्पेशली दोज जो अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन करके निकले हैं, आई वुड सजेस्ट एनीवन एंड एवरीवन टू प्लीज सॉल्व द मॉक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस टाइम पे एक तो आप अभी अभी जब आप कॉलेज से एग्जिट कर रहे हो, आपने कोई कंपटीशन एग्जाम फेस नहीं करा है, यू आर न्यू टू ऑल दिस। तो वहां पर आप एक तो पेपर की लेंथ देख के थोड़ा सा पैनिक कर जाओगे। टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं होता, 120 क्वेश्चंस कर सॉल्व करने होते हैं 2 घंटे में। अगर आपने प्रायर प्रैक्टिस नहीं करी होगी कि आपको एक टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करने हैं, तो देर आर 90% चांसेस कि आप पेपर छोड़ के आओगे। तो मॉक्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवन शुड सॉल्व मॉक्स बिफोर टेकिंग द फाइनल एग्जाम, एंड बट मॉक्स के साथ प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करना, प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना और ये देखना कि आप कभी आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। सो मेरी एडवाइस है कि जब आप प्रिपरेशन मोड में हो, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन जुलाई और जून, सो साइमल्टेनियसली विद द प्रिपरेशन you can analyze the previous years, you solve the previous years। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है या फैमिली लॉ पढ़ा है, तो आप पिछले 5-6 साल के पेपर उठाओ और आप फैमिली लॉ के क्वेश्चंस ढूंढो या कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस ढूंढो और सिर्फ उन्हें सॉल्व करो और देखो कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। उसके बाद जब आपकी प्रिपरेशन 70 to 80% हो जाए, उसके बाद यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक्स, मे बी प्रेफरेबली इन अक्टूबर एंड नवंबर। सो यस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम डे पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, लाइक कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करे, पैसेज आपने पूरे रीड किए या फिर सीधा क्वेश्चंस पर? हाँ, तो एग्जाम डे पे मैं पिछले 2 साल से मैं पटियाला जाती हूँ एग्जाम देने। वहाँ मेरी सिस्टर का घर है, सो आई फील कंफर्टेबल देयर। आई हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट एंड देन आई गो टू टेक द एग्जाम इन RGNUL पटियाला। तो पिछली 2 बार से जब मैंने एग्जाम दिया, तो फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज वॉज कि इतनी मोटी बुकलेट आती है क्वेश्चन पेपर की, तो बहुत सारे लोग उसे देख के घबरा जाते हैं बिकॉज 2 घंटे का टाइम है। और ऊपर से कंसोर्टियम के कुछ अजीब अजीब से रूल्स थे इस बारी, जैसे कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ मार्क नहीं करना। एंड देन उन्होंने हमारे टाइम पे तो उन्होंने पेपर भी ना, जब 2 बज गए तब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करे, तो 5-7 मिनट तो वो OMR शीट फिल करने में लग गई। सो देर वर लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज दिस ईयर। मतलब उन्हें थोड़ा सा प्रायर देना चाहिए था ताकि हम एटलीस्ट फिल अप कर दें। तो वो बहुत सारी कंफ्यूजन थी। फिर उन्होंने एक कुछ हमारी क्लास में ये भी हो गया था दैट somebody wrote something on the question paper and then the entire team came and there was a discussion and argument going on। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करके चलनी है एंड यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर एग्जाम बिकॉज अल्टीमेटली ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा आगे के लिए। तो first things first, my first advice, whatever is going on around you, just put a curtain around it and focus just on your paper। Then secondly, अगर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो उसकी लेंथ देख के या उसकी थिकनेस देख के घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होता। सबके पास सेम टाइम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं 2 घंटे में, हर किसी के पास उतना ही टाइम है। देन थर्ड थिंग इज कि जब आप अगर जैसे मैंने जब अपना क्वेश्चन पेपर खोला, तो मैंने देखा पहला पैसेज ऐसा था जो मुझे नहीं आता था, शायद सिक्योरिटीज लॉस से था, मुझे अब याद भी नहीं है। तो मैंने वो स्ट्रेट अवे नेक्स्ट पे आ गई।
तो अगर आपको पहला नहीं आता, मूव टू नेक्स्ट, सेकंड नहीं आता, मूव टू थर्ड। तो आपको जो आता है पहले, जो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल लॉज की अच्छी है या कॉन्ट्रैक्ट की अच्छी है, तो पहले वो पैसेजेस सॉल्व करो। उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं, कुछ तो मुझे आता है। अगर आप पहले ही वो सॉल्व करने बैठ गए जो आपको नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा कि पता नहीं आगे क्या होगा। सो फर्स्टली, एक बारी पूरे क्वेश्चन पेपर की सुपरफ्लुअस रीडिंग ली, एंड देन आप वो वाले क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो जो आपको आते हैं। उसके बाद वो वाले क्वेश्चंस पे आओ जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, उन्हें बिल्कुल लास्ट के लिए रखो। तो ऐसे करके आपको अपना डिवाइड करना है। नाउ सेकेंडली, अबाउट द पैसेज। पैसेज रीडिंग शुड ऑलवेज कम आफ्टर यू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। अगर आप पहले पैसेज पढ़ने बैठोगे, अब फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका पेपर 110% कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। कि आप पूरा पूरा पैसेज पढ़ रहे हो, आप एक एक वर्ड पढ़ रहे हो, आप सब कुछ देखते हुए जा रहे हो, तो आप कैसे पॉसिबल है कि आप 24 पैसेजेस पढ़ के वो पांच पांच क्वेश्चन सॉल्व कर लो 2 घंटे में? सो इट्स नॉट पॉसिबल। एंड देन सेकेंडली, बहुत सारे पैसेजेस में ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी स्टैटिक नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ते तो भी आप सॉल्व कर लोगे। एक आई थिंक एविडेंस का एक पैसेज आया था, उसमें मैंने पैसेज पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही सॉल्व कर पाई। तो उसमें ऐसे टाइम बच जाता है। तो हमेशा पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस सॉल्व ट्राई करो कि आप क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर लो। उसके बाद आप पैसेज पढ़ो, और पैसेज में भी फिर आप वही लाइन ध्यान से पढ़ना जो नीचे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो आपने अभी सॉल्व करना है। इससे आपका टाइम बचेगा और आप कंप्लीट कर पाओगे। थर्डली, इट इज अबाउट कि आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मैं मेरी कोई ऐसी मैंने काउंट नहीं करा मैंने कितने करे थे, बट आई थिंक आई समवेयर अटेम्प्टेड अराउंड 105 to 110। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एट दैट टाइम। बट अपना टारगेट यही बना के चलो कि आपको 75 से अबव स्कोर करना है। अगर आपको 75 से अबव स्कोर लाना है और आप सिर्फ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या 85 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि आप कर पाओगे, अनलेस आपके आंसर्स बिल्कुल ही एक्यूरेट हैं। तो थोड़े से कैलकुलेटेड गेस मारो, बिल्कुल ही तुक्के नहीं मारने हैं कि आपने पढ़ा ही नहीं है। वो बिल्कुल एक बैराक बेस सेक्शन पूछ लिया कि सेक्शन 2 ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट में क्या डिफाइंड है, और आप बिल्कुल ही तुक्का मार के आ रहे हो, ये मत करो। मेक सम एजुकेटेड गेसेस, थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, थोड़ा सा पीस काम रख के ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन जहां पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बट अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता, then you can avoid that question because 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। बट देन एवरीवन शुड एटलीस्ट अटेम्प्ट समथिंग अबव 100, अगर आपको एक टॉप 50 में अपनी रैंक लानी है तो। सो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जाम डे। Okay, so as you told, you were a judiciary aspirant. So, what are your views on this 3 years practice mandate? I don't really like the rule on the first place. मुझे भी ऐसे बहुत लगा कि बहुत सारे बच्चे जब ज्वाइन करते हैं लॉ, तो उनकी एस्पिरेशन ये होती है कि वो जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे। I am lucky enough that I am going to complete my 3 years as an advocate in October, and I had some practical experience also that I gained in during my preparation. But then there are many others जिन्होंने enrollment ही नहीं कराया है, and they were just preparing for judiciary, and अब वो बेचारे मतलब कहीं के नहीं रह गए हैं। नाइट अगर वो लिटिगेशन में जाएंगे, सो इट्स वेरी टफ। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा थियोरेटिकल नॉलेज है अगर आप जुडिशरी के एग्जाम में बैठ रहे हो, अगर आप मेंस फेस कर रहे हो। बट देन जब आप लॉ फर्म्स में जाते हो, या अगर आप अब सोचो कि आप अपना करियर स्विच करोगे, तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। दे पे यू वेरी लेस। मतलब आप सोचो, आप 3 साल आपकी ग्रेजुएशन को हो गए हैं, आपने आप 2
स्टेट्स के इंटरव्यू भी फेस कराए हो, पर आपने इनरोलमेंट नहीं कराया, एंड नाउ यू हैव टू गो एंड प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करने जाते हो तो उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि आपके पास कितनी थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपके पास आप कितनी स्टेट के मेंस दे के आए हो, कितनी स्टेट के इंटरव्यू दे के आए हो। दे जस्ट सी कि आपके पास क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको ऐसे पे करते हैं 10,000 15,000, मतलब आप सस्टेन भी नहीं कर पाओगे अपने आप को। सो दैट आई थिंक इज अ वेरी डिप्रेसिंग सिचुएशन, एंड फॉर दैट रीजन ओनली मुझे क्लैट पीजी बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि एक तो आपको पीएसयूज में जाने का ऑप्शन मिल जाता है अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, एंड देन यू कैन गो फॉर द एकेडमिक्स ऑल्सो। आप क्लैट पीजी या एलएलएम में इनरोल करने के बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर आइदर प्रोफेसरशिप और यू कैन बिकम अ जेआरएफ। सो दैट इज ऑल्सो अ रियली गुड ऑप्शन। प्लस मुझे ऐसा लगता है दैट देर आर वेरियस अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑल्सो दैट वन शुड फोकस ऑन, लाइक सेबी, IBPS SO. Then RBI also conducts various exams. Then there are various PSUs that do not recruit through CLAT PG, they conduct their own exams. So, especially for those people who have been, banned by the Supreme Court because of this 3-year rule, they can definitely look up to these exams also. Baki to no one can challenge the Supreme Court. This is how it is. Everyone has to accept. लास्टली कोई भी फाइनल टिप या एडवाइस जो आप देना चाहो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? Yes, of course. एक टिप तो ये कि be consistent, study every day. I see a lot of people, getting very excited when they start their preparation, aiming कि हम top 50 में आएंगे, I will join a PSU. But then when you start preparing, आपको boring लगने लगता है, and आपकी consistency छूट जाती है। आप 3 दिन पढ़ते हो, फिर आप 2 दिन का ब्रेक ले लेते हो, फिर आप 4 दिन पढ़ते हो, फिर आप 2 दिन का ब्रेक ले लेते हो। ये मत करो। ट्राई टू स्टडी एवरी डे। 15 दिन में एक बारी ब्रेक ले लिया या 2 बारी ब्रेक ले लिया, दैट्स ओके। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप हर 3 दिन के बाद 2 दिन का ब्रेक ले रहे हो, तो आपका वो ना पढ़ने का मोमेंटम कभी नहीं बनेगा। तो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी है ना, तो भी जबरदस्ती 2 घंटे या 3 घंटे कुछ तो पढ़ ही लो। मन नहीं कर रहा तो कभी जजमेंट उठा के देख ली, लाइव लॉ पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर्स कर लिया, बट कुछ ना कुछ करते रहो। समथिंग दैट कीप्स यू, दैट मेक्स यू रिमेम्बर कि आपको भी आगे जाके एग्जाम देना है, तो बिल्कुल उसे छोड़ो मत। दैट इज माई ओनली एडवाइस, दैट इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल गेट टू दैट पॉइंट। मैं कंसिस्टेंट थी तो मेरी रैंक आ पाई। अगर मैं कंसिस्टेंट ना होती देन आई डोंट थिंक सो कि मैं इतने कम प्रिपरेशन के टाइम में इतना अच्छी रैंक ला पाती। सो दैट्स व्हाट मैटर्स, बीइंग कंसिस्टेंट। Thank you so much, Suniti, for this really insightful discussion. Your journey थैंक will यू। definitely help me to understand this process. It's been a pleasure talking to you today, and we wish you all the very best for your future. Same here, Vidushi. Thank you so much.